Good morning, friends. Chapter 6, Parallel Lines and Transversal Lines. What is the parallel lines? If two lines lie in the same plane, एक ही प्लेन में बेटा सेम प्लेन, but do not intersect. ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए. When produced either side, then such lines are said to be parallel to each other. Clear? क्या बेटा two lines lie in the same plane and do not intersect. When produced on either side, then such lines are said to be produced parallel to each other. Okay, line L and M. So now is denoted by symbol is small l parallel small m. Line L parallel small m. Right? Now clearly L parallel m, then M parallel L. Symbol is parallel. Clear हो गया parallel line. Now is a transversal line. A straight line which cuts two or more straight lines. A straight line which cuts two or more straight lines at distinct points is called as a transversal line. Okay, now straight line. Suppose these are the straight line. Now cuts. Okay, suppose one line and now another two lines is L, M and N. Okay, a straight line which cuts two or more straight line at distinct point. Distinct point means P and Q is called as a transversal line. Clear? We define transversal line. Clear? अब now देखो this figure है बेटा कि in the figure line L M is a transversal of the lines. देखो line L से ट्रांसवर्सल किया है बेटा उसको, किसको लाइन, कौन से लाइन को, M और N को, M and N. Clear? If the line L intersect at M at point P and N at point Q. Okay, M and N point P. M intersect कौन से पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q respectively. हो गया क्लियर? कि व्हाट इज द transversal line? Straight line which cuts two or more straight lines at distinct point is called as a transversal line. Clear हुआ? देखो दोनों लाइन दी बढ़ाई, टू लाइन M और N. Straight line is a L. The straight line which cuts two and more straight line P and Q, this is called transversal. तो ये मेंशन किया कि लाइन L intersect M and N at point P and Q respectively. Then four angle are formed at the each other. Four angle means angle 1 P point four angle आएगा, angle 1 2 3 and 4, angle Q 5 6 7 and 8. Okay, four angle are formed at each of the following point P and Q. P is 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, one angle, two angle, third angle, fourth angle, 1 2 3 and 4th and 5 6 7 and 8. Right? Four angle form 1 2 3 4 5 6 7 up to 8 तक. तो एंगल 1 2 3, अब सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल कि 1 2, देखो 1 2 7 and 8, 1 2 7 and 8 एंगल आर. तो यहाँ पे मेंशन करो, फिगर 2 करो. Small m and N now is a transversal. L is point P and Q, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7 and now 8. The angle 1 2 3, 1 2 7 and 8, 1 2 7 and 8 R is called an exterior angle.
एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, ये एंगल कौन से आएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर? हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल? 1, 2, 7 एंड 8 आर इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो विच एंगल्स आर इंटीरियर एंगल? जो 3, 4 ये एंगल 3, 4, 5 एंड 6, 3, 4, 5, 6 इज कॉल्ड एज अ इंटीरियर एंगल। कि ट्रांसवर्सल लाइन में बड़ा एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हो? इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? यस। अब देखो डाल कि दस वी गेट सम पेयर, जो ट्रांसवर्सल है पेयर ऑफ एंगल्स विच आर गिवन बिलो। तो सबसे पहला कौन सा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। किसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स द एंगल ऑन सेम साइड, the angle on same side of a transversal are known as the corresponding angle. The angle on the same side, ये सबसे important है, same side of a transversal are known as the corresponding angle if both lie are either above the two lines and below the two lines, above and below the two lines। देखो कितने 4 पेयर मिलेगी? कौन से पेयर? कि नाउ एंगल 1 and angle 5, this angle 1 and angle 5 is a corresponding angle। कि angle 1 and angle 5, angle 1 and angle 5 D, कि angle 1 and angle 5 is a corresponding angle। angle 2 देखो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से आपको क्लियर हो जाए। एंगल 1, 2, 3, 4, पॉइंट P, पॉइंट Q, 5, 6, 7 एंड 8। अब इसमें क्या है? देखो आपको दिया है बेटा ना, एंगल 1 ले दिस एंगल एंड एंगल 5, 1 पेयर हो गई, 1 एंगल एंड नाउ अनदर एंगल। क्लियर? इज कॉल्ड एज अ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 6, दिस एंगल एंड दिस एंगल 2 and 6 is a corresponding angle, corresponding। and now number third, angle 4, this angle 4 and angle 8, this and this। clear हो गया? 4 and 8, 3 and 7, 3 and 7 is a corresponding angle। इसलिए लिखा है the angles on the same side, same side वाली of transversal are corresponding angles, both are either above 1 and 5 above वाली, और below वाले 4 and 8, 2 and 6, 3 and 7 इसको corresponding pair। 4 पेयर मिलेगी आपको corresponding angle। क्लियर हो गया corresponding angle। अब नाउ alternate angle, अल्टरनेट एंगल, उसके लिए भी फिगर ड्रॉ कर ले आपको क्लियर हो जाए। स्मॉल m n P पॉइंट 1, 2, 3, 4, 8। अल्टरनेट एंगल when the two lines crossed another line, क्या है? crossed another line, the pair of angle of opposite sides of the transversal is called as alternate angle। अल्टरनेट उसमें दो आएंगे अल्टरनेट, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 4 क्रॉस कर रहा है, देखो ये 4, इसके ऑपोजिट जेड से बन गया अच्छी तरह से। देखो 4 एंड दिस एंगल, देखिए कि अल्टरनेट
इंटीरियर ये अंदर से है बेटा, अल्टरनेट कौन सा हो गया कि अल्टरनेट 4 and 6 2 pair is there. Now 3 and 5 opposite z, this and this एंगल 3 ये 3 एंगल है 3 आएगा. एंड नाउ एंगल 5 3 एंड एंगल 5 इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल है कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इज इट क्लियर. ए क्रॉस टू अनदर लाइन. अब नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स एंगल 1 and angle 7, एंगल 1 and एंगल 7 ये बाहर का आउटसाइड अल्टरनेट ये बड़ा को आउटसाइड बनेगा. एंगल 1 and एंगल 7, एंगल 2 and एंगल 8, एंगल 2 and एंगल 8. क्लियर हो गया. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 7 2 8. इज इट क्लियर. हो गया क्लियर. अब नाउ नंबर थर्ड इज अ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मीन्स M N L Q 1 2 3 4 5 6 8. Now interior angles on the same side of the transversal. Now angle 4 and 5, angle 4 and 5, 4 and 5 C शेप. देखो इंटीरियर एंगल कौन सा शेप बन रहा है C शेप. 4 and 5 और दूसरा कौन सा आएगा 3 and 6, 3 and 6. इज इट क्लियर. हो गया. देखो 4 ये 4 है एंड नाउ 5. इसके ऑपोजिट वाले ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. तो कौन सा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. अब नाउ एग्जाम 1 क्या है. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. एग्जाम में याद रखना A1 A2 3 4 and 8. Okay, now transversal intersect. Transversal line हुई L AM on N. Two parallel line the M और N. Then each pair of corresponding angle. Each pair of corresponding angle are equal. ये दोनों equal है. Angle 1 equal to angle 5. Angle 1 इक्वल टू एंगल 5. ये दोनों इक्वल. जैसे मान लो ये 30 है तो ये भी क्या आएगा 30 आएगा. क्लियर हो गया. एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल. एंगल 4 एंड एंगल 8 इज ऑल्सो इक्वल. एंड नाउ एंगल 3 एंड एंगल 7 इज ऑल्सो इक्वल. ये क्लियर होगा. अभी क्या था बेटा एग्जाम 1 था. क्लियर होगा एग्जाम 1. अब नाउ थियरम के 6.2 थियरम देखो टेक्स्ट बुक रखना है आपको कि प्रूव दैट. देखो 6.1 हमने प्रूव किया था. अब इसके बाद आएगा 6.2 थियरम लर्न करना है बड़ा. एग्जाम में ओनली फॉर स्टेटमेंट ही आएगा. आपको डेटा टू प्रूव और प्रूफ सब कुछ लिखना पड़ेगा. ध्यान रखना है कि प्रूव दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. याद रखना बेटा कौन सा है हमको इक्वल बताना है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल. ये हमको प्रूव करना है. हो गया क्लियर. प्रूव दैट इफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल हो गया L. टू पैरेलल लाइन ले. टू पैरेलल लाइन यहाँ पे M और N टू पैरेलल लाइन. ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल 3. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया, एक्सटीरियर नहीं बताया. अल्टरनेट 3 and 5 इक्वल है. ठीक है. एंड नाउ 4 and 6 ये हमको इक्वल प्रूव करना है. क्लियर हो गया. तो डेटा में क्या जो गिवन में दिया कि ए बी पैरेलल सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल एल कट ए बी एट एल कट ए बी विच पॉइंट पी पॉइंट AB at point P and CD at point Q, CD at point Q.
and they make two pair of alternate interior angles. Like angle 3 alternate interior angle, angle 3 and angle 5, and now angle 4 and angle 6, 3 and 5, 4 and 6, ये हमको प्रूव करना है, राइट? हो गया क्लियर? अब करेंगे प्रूफ वन बाय वन. प्रूफ कि वी हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हुए. याद करो बड़ा एक्स शेप, ये दोनों इक्वल ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 3. तुम ब्रैकेट में वर्टिकली जो इक्वेशन 1 ये लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में बड़ा मार्क्स कट जाए एग्जाम में. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्लियर हो गया? अब नाउ एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये कौन सा मैंने कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ब्रैकेट में ये इक्वेशन 2 कि वी हैव, हम जानते हैं बेटा कि वी हैव एंगल 1 एंड एंगल 3 इज वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 इज अ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल. तब क्या करें? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट. नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या हुआ? इक्वल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, दो ये तो प्रूव है, एंगल 3 इक्वल टू 5, राइट? क्लियर हो गया एंगल 3. अब एंड एंगल 4 और एंगल 6 दोनों प्रूव करना है, एंगल 4 एंड एंगल 6. नाउ अगेन एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इज अ वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल 2 इसके सामने एंगल 4 है, 4 इज इन ब्रैकेट वर्टिकली opposite angle, vertically opposite angle, angle 2 and angle 4 vertical opposite angle, right? Clear हो गया? ये इक्वेशन 3. अब नाउ एंगल 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वेशन 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6, क्लियर हो गया? क्लियर? अब इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट. देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या था कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, 2 टू देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. प्रूव हो गया, हैंस प्रूव. हो गया हैंस प्रूव. क्लियर? तो फिर से बता रहा हूं आपको, क्लियर हो जाए. फिगर है एम और एन, लाइन एल, पॉइंट पी कि 1 2 3 4 आपको दिया बेटा, यहाँ पे 1 है, इसको दिया 1 2, ये 3 एंड 4 5 6, 5 तो बड़ा इस साइड 5 6 7 और 8. प्रूव क्या करना है हमको? एंगल 3 ये प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड सेकंड इज एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये प्रूव करना है, राइट? क्वेश्चन फिर से एक बार देखो, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. ये हमको बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये हमको प्रूव करना है. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, राइट? इससे पहले 3 एंड 4 है बेटा, तो 3 एंड 4 से पहले कि एंगल 1 ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया इसके सामने.
क्लियर। और एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 is a corresponding angle, this angle and this angle is corresponding angle, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 कंपेयर करो तो क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये फर्स्ट प्रूव हो गया। अब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 लाना है बेटा, ठीक। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इज अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इक्वेशन 3। अब नाउ एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, कौन सा एंगल में, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 इज अ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वेशन 4 3 एंड 4 कंपेयर करो तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, क्लियर हो गया, हैंस प्रूव।